This class is for class 7. I am going to start chapter 14, that is wind and storm. Okay, so you have completed half yearly exam successfully, and almost all students did well. I have seen some improvement is also there among some students, especially Bhashat. Angarag is special one, and Nishita, Namrata, lots of are there who did well. And one thing I would like to repeat that along with study also give importance in your health. That is most important, and habits. I'm continuously trying to give you feeling that character and health, these are very important in life. Okay, so try to have good habits. It will take time, but give time. Slowly it will improve, but for long life planning it will work. And one more thing I would like to say you, that honesty is the best policy. Okay, the path is little bit difficult, but it gives lots of happiness. Okay, and honestly try to understand all the content. And science and mathematics and English grammar, these three are very important for your life. So as I told you that we are having a crucial time for everyone. So in crucial time we should do more work. Okay, then good time will automatically come. सो बैड टाइम में आदमी को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. और इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ टाइम, देन यू विल गेट मोर फीलिंग्स इन लाइफ. अगर खराब टाइम नहीं होता है तो अच्छा टाइम का डिफरेंस नहीं समझ पाते. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो इसीलिए सब गॉड में एक सिक्का का दो, जैसे गर्म है तो फिर ठंडा है, अच्छा है तो बुरा है. सो बोथ आर गिवन. ओके, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज आल्सो गिवन. विदाउट प्रॉब्लम फीलिंग्स विल नॉट कम. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. दिस चैप्टर इज लिटिल बिट conceptual also, theoretical chapter, but little bit conception is also there. So first of all we have to know what is wind. Okay, so movement of air in horizontal direction is called what? Wind. Movement of air. Okay, movement of air in the horizontal direction is called wind. You can include one point also. Movement of air in the horizontal direction in the atmosphere is called wind. And the reason behind the wind is temperature difference. ठीक है, इसमें क्लाइमेट भी हियर ना, क्लाइमेट इज ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. द चेंज ऑफ क्लाइमेट, चेंज ऑफ सीजन is due to change of temperature. Okay, so let us see. Suppose this is the earth, and I will take a small part of air, atmosphere. Okay, suppose this air is taken. So you all already know that air contains so many gases. There is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, noble gases. Okay, so combination of this gas is called air. Okay, air. So suppose दिस इज ए पार्ट ऑफ एयर. जैसे हम लोग ये स्टेट का एयर मान लेते हैं, अपना असम स्टेट का एयर, इतना हाइट तक एयर है. यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी आपका क्या होगा, हिल्स होगा. ऐसा हिल्स से यहाँ पे इतना हाइट तक एयर है, यहाँ पे इतना हाइट तक एयर है, यहाँ पे इतना हाइट तक एयर है. सो यहाँ पे जो है ना, दो जो पैरामीटर है, टू पैरामीटर विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, इससे मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया इस जगह का,
मान लेते हैं आज का ये टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो एक गुवाहाटी है तो ये तेजपुर में टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, मान लेते तेजपुर है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया। तो टेम्परेचर लो मीन्स द एयर पार्टिकुलर क्लोज टू ईच अदर। टेम्परेचर कम होने से, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो एयर इज कन्वर्टेड टू व्हाट, लिक्विड। You already know that, and when again temperatures go down, then liquid is converted to what, ice, solid. So temperature जब कम होता है तो मोलिक्यूल पास में आ जाता है, वाटर एयर मोलिक्यूल विल क्लोज टू ईच अदर, क्लोजली पैक्ड, लिटिल बिट क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर मैंने लिख दिया लो, प्रेशर वुड बी हाई। व्हाई प्रेशर वुड बी हाई? व्हाट इज द मीनिंग प्रेशर ऑफ मीनिंग here meaning of pressure is, see pressure means suppose यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा हुआ है तो ये हाइट का वैसे ही एयर का वैसे यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वजह से एक प्रेशर किसी हम लोग का अर्थ सरफेस पे जो भी बॉडी है उसके ऊपर लगा, हम लोग ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन हम लोग बचपन से इसको फील करके मतलब बचपन से मिल रहा है बोलकर हम लोग फीलिंग नहीं होता है। एयर ने हम लोग को भी प्रेशर देके रखा है और एयर प्रेशर नहीं होगा ना हम लोग ब्रीथिंग भी नहीं ले सकते। और यहाँ सडनली एयर गायब हो जाएगा तो हम लोग का लंच फट जाएगा, ब्लड का वेसल्स फट जाएगा, ब्लड का में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर बहुत हाइट में हिल्स में से माउंटेन में कोई गया हुआ है वहाँ पे देखो एयर नहीं आने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, एयर कम होता है वहाँ पे, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है वहाँ पे। हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी देयर, देन ओनली दे कैन क्लाइंब द माउंटेन। ओके, सो जहाँ पे हाइट जैसे हिल्स है तो हाइट कम है, ये हाइट नहीं, ये हाइट का बात नहीं कर रहा हूँ, एयर का हाइट कम है, एल्टीट्यूड कम है, सो देयर एयर प्रेशर विल बी लो। ओके, एयर प्रेशर विल लो। सो मान लो टेम्परेचर कम है, एयर प्रेशर ज्यादा है तो हमेशा याद रखना, ठीक है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर लो होगा। ओके, सो यहाँ पे मोलिक्यूल बहुत दूर दूर में है, मोलिक्यूल बहुत दूर दूर में है, ठीक है, तो मोलिक्यूल थोड़ा सा गर्म होके हीट होके ऊपर उड़ गया तो जगह खाली हो जाता है। तो जगह को पूरा करने के लिए वो जो डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी वाला एयर जहाँ पे है, प्रेशर जहाँ पे हाई है वहां से एयर का फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं विंड, इसी को बोलते हैं विंड, दिस इज कॉल्ड विंड। ओके, तो हमेशा याद रखना एयर का जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर में तो मोलिक्यूल ज्यादा है, वहां से कम मोलिक्यूल जहां पे वहां पे मूवमेंट होता है। और एक ये बोल सकते हो एयर का मूवमेंट लो टेम्परेचर से कहा होता है हाई टेम्परेचर में जाता है। ओके, यहाँ पे हल्का है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो विंड का रीजन क्या है, विंड का डेफिनेशन तो आप आराम से दे पाओगे, द मूवमेंट ऑफ एयर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विंड। विंड का रीजन क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट होता है एंड लो टेम्परेचर में से हाई टेम्परेचर में एयर का मूवमेंट होता है। और मूवमेंट का रीजन क्या है, द डिफरेंस ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। ओके, एंड हियर movement of air is due to temperature and what, pressure. And one more important thing, atmospheric pressure is depend on height of the air from the earth surface. तो atmospheric pressure कहाँ पे कम होता है, माउंटेन वगैरह में कम होते हैं, this point is also important. And atmospheric pressure का वजह से हम लोग ब्रीथिंग कर पाते हैं, that is also important point. And climate maintain होता है, ठीक है। And अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे हम लोग का जो सीजनल चेंज होता है, सीजन होता है ना, विंटर सीजन, समर सीजन। जैसे मान लो समर सीजन है तो समर सीजन है तो हम लोग का यहाँ पे मान लो ये जगह में समर सीजन है अभी, तो समर सीजन है तो तुम्हारा यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सी वगैरह में टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर वहाँ पे कम है तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सी से बहुत ज़्यादा वाटर वेपर, वाटर मोलिक्यूल, मतलब एयर में तो वाटर मोलिक्यूल होता है कुल जगह में, है ना, सो वो आपका विंड के साथ बाको घूम के मतलब मूवमेंट होके आता है, तो उसको बोलते हैं मानसून विंड। मानसून विंड। और मानसून विंड अगर फ्लो होता है जहाँ जहाँ साइक्लोन का वैसे भी मानसून विंड होता है, देखना उस समय जो साइक्लोन हुआ था तो सी से गर्म जगह में एयर मूवमेंट हो गया है, आते 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 हम लोग असम तक पहुंच गया था। असम में एयर का स्पीड, विंड का स्पीड कम था
बट यहाँ पे क्या हुआ, इतना सारा वाटर लेके आया एयर ने, जो यहाँ पे काफी हैवी बारिश हुआ है। ओके, तो सीजनल चेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, और मानसून विंड भी आपका सागर से, सी से हॉट प्लेस में मूवमेंट होता है, उसका वजह से हैवी रेन होता है। ओके, सो विंड का रीजन भी मालूम चल गया, मानसून विंड क्या है वो भी मालूम चल गया। सो इस चैप्टर में है थोड़ा 3-4 वीडियो बनेगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बिकॉज आवर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। फाइनल के लिए बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है, बट अगेन आई वुड लाइक टू से यू दैट आप खुद को बिजी रखो, ट्राई टू कीप यू बिजी। जो बहुत कम मार्क्स मिला है वो क्या करो आप, देखो जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो घर में भी पढ़ रहे हैं, उनको कुछ ठेलना नहीं पड़ता है, अपना जिंदगी को खुद का जिम्मेदारी खुद समझते हैं। जब आपका खुद का जिम्मेदारी खुद नहीं समझोगे, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। टेम्पररी बढ़ सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा बोल के मोटिवेट करके कर देंगे, लेकिन आपको खुद आगे बढ़ना है। वी विल गिव ओनली सपोर्ट, यू हैव टू गो। ओके, एक गाड़ी अगर बहुत अच्छा कंडीशन में भी है, अगर ड्राइवर चलाने का मन नहीं है तो नहीं होगा। अगर गाड़ी का कंडीशन भी खराब है, अगर ड्राइवर बहुत एफिशिएंट है तभी उसको चला के लेके जाएगा। ओके, सो वी कैन गिव ए प्लेटफॉर्म, वी कैन गिव यू ए प्लेटफॉर्म, बट यू हैव टू मूव। एंड एक बात है, पढ़ाई का जब तक हार्डली नहीं लोगे ना, दिल से नहीं लोगे तो नहीं होगा। मैं बहुत एनालिसिस करके आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत कुछ मैं शेयर कर पा रहा हूँ बहुत डेप्थली। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अटैचमेंट शुड बी देयर विथ योर स्टडीज, तभी लॉन्ग रन के लिए ठीक होगा, नहीं तो आगे जाकर आप गिरने का चांसेस है। ओके, आज के लिए इतना ही है, इंट्रोडक्शन क्लास था। सो अगेन हाफ ईयरली एग्जाम इज कंप्लीटेड, you will take rest also. Now again start the study. Most probably offline PA2 exam will be conducted in the November. I will give the routine as soon as possible. Okay, so start your study, and if you have any doubt then you can call me. Okay, fine.